Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Open your active English course book. Unit number 12, A Welfare Ugandans, at page 148. Here, an activity related to listening has been given. First, we will read the given instructions to do this activity. Instructions are: listen carefully to the news report, take notes and then fill in the blanks. न्यूज़ रिपोर्ट को एहतियात के साथ गौर से सुनिए, नोट कीजिए और फिर खाली जगहों को पुर कीजिए। टेक नोट्स का मतलब होता है याददाश्तें लिखना, मतलब आप उनके अहम पॉइंट्स को याद रखने के लिए लिख सकते हैं या आप चाहें तो ज़ुबानी भी आप उसको ज़हन-नशीं कर सकते हैं। आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनाई जाएगी, आपने उसे एहतियात के साथ गौर से सुनना है ताकि उसके बाद आप 148 पेज पर दी गई ब्लैंक्स को फिल कर सकें। आई एम गोइंग टू रीड द न्यूज़ रिपोर्ट टू यू। मैं आपके लिए न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ने लगी हूँ। लिसन इट केयरफुली। News report is: Johnny Smith, a 4-year-old boy, lost his way in a huge shopping mall after wandering away from his mother. Mrs. Smith was busy selecting fruits in the supermarket when she noticed that Johnny was not by her side. She called out for him but received no response. Meanwhile, Johnny was feeling very hungry because it was about lunchtime and he had not eaten his lunch. So he was looking for an eatery in the shopping mall. Luckily, a kind shopper, Gordon, found him and brought him to the customer service counter in the mall. Mrs. Smith came to pick him up as soon as the officer made an announcement in the intercom about a lost child. Mrs. Smith went to the counter to fetch Johnny. Johnny complained to her that he had fallen down the steps and thus had bruised his knee. He also mentioned that he was starving. Otherwise, he was unhurt. Mrs. Smith was relieved to have found her son. You have heard the news report. Now you have to fill in the blanks given on page number 148. First sentence is: Johnny Smith, a 4-year boy, lost his way in a huge. जॉनी स्मिथ जो कि एक 4 साला लड़का है, अपना रास्ता खो दिया उसने इन अ ह्यूज, एक बड़े। कहाँ था वो जब उसने अपना रास्ता खोया? हमने न्यूज़ रिपोर्ट में सुना था कि इट वॉज अ शॉपिंग मॉल, सो वी विल राइट इन द ब्लैंक शॉपिंग मॉल। Johnny Smith, a 4-year boy, lost his way in a huge shopping mall. Second sentence is: his mother had been busy dash fruits in the supermarket. उसकी वालदा मसरूफ़ थी सुपरमार्केट में फलों को। उनकी वालदा सुपरमार्केट में फलों को क्या करने में मसरूफ़ थी? We have heard in the news report that his mother had been busy selecting. So we will write here selecting. His mother had been busy selecting fruits in the supermarket. Sentence number 3: Johnny dash when his mother called him. जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, जब जॉनी अपना रास्ता भूल गया था, उसकी माँ ने जब उसको पुकारा था तो जॉनी ने क्या किया था? जॉनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जॉनी ने जवाब नहीं दिया था when his mother called him, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया था। सेंटेंस नंबर 4: जॉनी वॉज फीलिंग डैश। जॉनी महसूस कर रहा था बिकॉज इट वॉज लंच टाइम, क्योंकि ये दोपहर के खाने का वक्त था। दोपहर के खाने का वक्त था तो जॉनी क्या महसूस कर रहा था? वी विल राइट हियर हंग्री। जॉनी वॉज फीलिंग हंग्री
जॉनी भूख महसूस कर रहा था बिकॉज इट वॉज लंच टाइम, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त था। सेंटेंस नंबर 5 इज गॉर्डन फाउंड जॉनी एंड ब्रॉट हिम टू द डैश। गॉर्डन ने जॉनी को पाया और उसे लेकर आया डैश तक, इन द मॉल में। तो गॉर्डन उस जॉनी को कहाँ लेकर आया था? वी विल राइट हियर कस्टमर सर्विस काउंटर। Gordon found Johnny and brought him to the customer service counter in the mall. Sentence number 6, Mrs. Smith came dash Mrs. Smith आई। Mrs. Smith कहाँ आई? सॉरी, मिसेस स्मिथ के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो शॉपिंग मॉल में आई थी। अब हमने देखना है कि मिसेस स्मिथ क्यों आई। वी विल राइट हियर टू पिक जॉनी अप। मिसेस स्मिथ जॉनी को लेने के लिए आई। नंबर 7, जॉनी कंप्लेंट ऑफ अ डैश बिकॉज ही हैड फॉलन डाउन द स्टेप्स। जॉनी ने एक डैश की शिकायत की क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गया था। किस चीज़ की शिकायत की थी जॉनी ने पहले? वी विल राइट हियर ब्रूस्ड नी की, यानी उसने इस चीज़ की शिकायत की थी कि वो सीढ़ियों में से गिरा था और उसका घुटना जो है वो ज़ख्मी हो गया था। नंबर 8, ही आल्सो मैंशनड दैट ही वाज। उसने ये भी जिक्र किया कि वो था, वो क्या था? वी विल राइट हियर स्टार्विंग, यानी कि वो भूखा था, वो फाके से था, उसने खाना नहीं खाया था। मिसेस स्मिथ वाज डैश टू हैव फाउंड हर सन। मिसेस स्मिथ अपने बेटे को पाकर थी। मिसेस स्मिथ अपने बेटे को पाकर क्या हुई थी? रिलीव्ड, यानी मिसेस स्मिथ को सुकून आ गया था, उन्हें उनकी परेशानी से निजात मिल गई थी जब उन्हें उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था। आपने न्यूज़ रिपोर्ट को दोबारा सुनना है और जो ब्लैंक्स हैं उनको खुद आपने फिल करना है न्यूज़ रिपोर्ट सुनने के बाद। Now move to page number 149. Here an activity related to speaking has been given. An instruction to do this activity are given at the top of the page. And the instructions are, how do you express your thanks? Here are some words you could use while expressing thanks. आप शुक्रिया का इजहार करने के लिए आप शुक्रिया का इजहार कैसे करते हैं? Here are some words, कुछ लफ्ज़ नीचे दिए गए हैं, you could use while expressing thanks. जब आपने शुक्रिया अदा करना हो तो आप इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पिक में देखें, एक वेल जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, राइन जो है वो उसके पास खड़ा है और तस्वीर में एक अफ्रीकन भी राइन के पास खड़ा है और वो अपना थैंक कैसे एक्सप्रेस कर रहा है उसके वर्ड्स में सुनिए। बॉक्स में लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग मनी टू बिल्ड द वेल फॉर अस। आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए कुआं तामीर करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर। हमने न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ा था कि राइन ने विश की थी कि अफ्रीकन को क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए वो अफ्रीका में एग्वियो जगह पर एक कुआं तामीर करना चाहता था। तो हमने ये भी पढ़ा कि जब कुआं तामीर हुआ तो वो लोग बहुत खुश थे, दे वर थैंकफुल टू राइन। सेकंड पिक में देखें, टेबल पर कुछ अफ्रीकन्स बैठे हैं और वहाँ पे राइन भी मौजूद है। अब वो अफ्रीकन्स किस तरह से उसका मज़ीद शुक्रिया अदा करते हैं। वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन फॉर अस। हम वाकई उसकी तारीफ़ करते हैं जो आपने हमारे लिए किया। नाउ वी कैन हैव क्लीन वाटर ईजीली। हम अब आसानी से साफ़ पानी हासिल कर सकते हैं। गौर करें कि उन्होंने किस तरह सादा से अल्फाज में लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे अपना थैंक एक्सप्रेस किया है। फर्स्ट बॉक्स में हमने देखा था जस्ट सेइंग बाय थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग मनी टू बिल्ड द वेल फॉर अस, एंड इन सेकेंड पैराग्राफ they are expressing their thanks by saying we really appreciate what you have done for us. Now we can have clean water
easily। और इसके रिस्पॉन्स में रायन की तरफ से कहा जाता है यू आर मोस्ट वेलकम, यानी अगर आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो आपको उसके जवाब में आप कह सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। वी मस्ट आल्सो बी थैंकफुल टू दोज who do good to us. Being thankful not only shows good manners, but a simple expression of thankfulness can go a long way in relationship and communication with others. It not only enhances our own lives, but also makes other people feel appreciative. जो हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये ज़ाहिर करता है कि हम अच्छे तौर तरीक़ों के मालिक हैं। और नंबर 2, शुक्रगुज़ारी का एक सादा सा इजहार दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक़ और राब्ते को एक लंबा रास्ता लेकर चलता है, यानी कि ये दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात और राब्ते को बढ़ाता है और इससे ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी की कदर में इजाफ़ा होता है, बल्कि इससे दूसरों को दाद भी मिलती है और जिसकी तारीफ़ की जाए एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसको ये चीज़ अच्छी लगती है। अल्लाह ताला पसंद करता है कि हम इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके साथ साथ वो ये भी पसंद करता है कि अगर हमारे साथ कोई दूसरा बंदा नेकी करता है तो हमें उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। थर्ड पिक में देखिए, बच्ची बर्थडे प्रेजेंट हासिल करने पर अपना शुक्रिया कैसे बर्थडे प्रेजेंट हासिल होने पर बच्ची किस तरह से शुक्रगुज़ारी का इजहार करती है। She says, "Thank you for the lovely birthday present." सालगिरह के खूबसूरत तोहफे के लिए आपका शुक्रिया। और इसके जवाब में तोहफ़ा देने वाला क्या कहता है? You are welcome. I hope you like it. आपको वेलकम, आपको खुशामदीद, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। अब आप बॉक्स में देखें, समवन हैज़ जस्ट रिटर्न्ड योर लॉस्ट बुक। किसी ने आपकी खोई हुई किताब अभी वापस की है, नोटबुक कॉपी वापस की है। वर्क विद अ क्लासमेट, एक क्लासमेट के साथ काम कीजिए। एंड रोल प्ले हाउ यू वुड एक्सप्रेस थैंक्स, और रोल प्ले कीजिए कि किस तरह आप अपने शुक्रिया का इजहार करेंगे। क्लासमेट तो इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपने ये एक्टिविटी ख़ुद ही करनी है। आपने ये सपोज़ करना है कि आपकी कोई नोटबुक गुम गई थी और आपके किसी दोस्त ने उसे अभी वापस किया है, तो आप उसके लिए अपनी शुक्रगुज़ारी का इजहार किस तरह से करेंगे। उम्मीद है कि आज करवाई जाने वाली दोनों एक्टिविटीज़ आपको समझ आ गई होंगी। आपने ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।